Choosing a job after CFA is not like dating. You just don't fall for the profile you see for the first time, right? You filter height, education, personality, job type, and then make a decision. कोई डॉक्टर चाहता है, कोई इंजीनियर चाहता है, कोई ट्रैवलर चाहता है कि पूरी दुनिया घूम सके, और किसी को गवर्नमेंट जॉब पसंद है. So in a nutshell, everybody is not meant for one frame, and that is actually happening with CFA jobs. सभी को एक ही चीज लगती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यही दो करियर है CFA करने के बाद. But the reality is there are n number of job roles after CFA, underrated job roles that can give you handsome packages, and that job role you can select as per your personality type. मेरा कहने का मतलब है कि अगर इंट्रोवर्ट हो तो रिसर्च एनालिस्ट परफेक्ट हो सकता है. एक्सट्रोवर्ट हो who loves to interact with people, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टर रिलेशन में चले जाओ. You just don't go for the popular two choice, you explore what matches you. और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं that I am going to give you number of options that you can walk in after your CFA, even after level 1, level 2 or level 3. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I want you to comment down what is your personality type. And here is the catch, I will be directly connecting to you through your comments, and personally one-to-one we can discuss about your CFA career, and I'll give you a tailored personalized CFA roadmap for you. So hello everyone, I am Aditya Shandey from Unique Global Education, and let's dive into the video, career after CFA and job role after CFA that matches your personality type. तो सबसे पहले बाकी जॉब रोल्स के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिनको नहीं पता है वो एक्चुअली में दिन भर करते क्या है. इन सिंपल टर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली कंपनीज को हेल्प करता है डील्स करने में और पैसा रेज करने में. M&A, IPOs, वैल्यूएशंस. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो टाटा इज बाइंग जैगुआर और जोमैटो गोइंग पब्लिक. तो उसके बीच में आप एज ए CFA करे हो. मेरा मतलब है वो डील मेकर आप ही हो. पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करें तो वो मिलियंस और बिलियंस मैनेज करता है. म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं और कौन से बेचने. तो थिंक ऑफ समवन मैनेजिंग HDFC's म्यूचुअल फंड्स, लिटरली मोर देन 1000 करोड़, एंड वो है पोर्टफोलियो मैनेजर. Sorry for interrupting. I'll take just a quick second. Yes, CA Mohit Rohra this side from Unique Global Education. Unique Global Education is a venture by Unique Academy for Commerce that has a rich legacy of more than 16 years, and Unique Academy for Commerce has helped more than 300 students achieve their dream of getting all India ranks in the field of CA, CS and CMA. Not just that, Unique Global Education has also helped many students achieve their dream of clearing the CFA examinations in the very first attempt. What makes us unique is our unique roadmap. So at Unique Global Education, we surely say we are the only in academy in India that has two special batches. One for those who have qualified CA and CCMA, and second is for working professionals and undergraduates, because the preparation requirement for each and every type of student is different. Apart from this, we make sure we teach each and every concept with conceptual clarity, plus we connect them with practical real life examples, plus we make sure that we solve more than 2000 MCQs on board, such that the students are ultimate examination ready. And what actually makes us unique is the corporate grooming program. In corporate grooming program, we don't just focus on theoretical skills, but we focus on the all-round development of the students. In that, we teach them communication skills as well as the technical skills. To know each and everything about this, make sure you visit our website or make sure you contact our CFA officials, and we'll be more than happy to help you with that. So let's continue with the video. तो चलिए हम बात करते हैं अब उन करियर ऑप्शंस की जो बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. और इन करियर ऑप्शंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स मैंने देखा है, पीपल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, आर स्टेपिंग इनटू फाइनेंस these days. और बहुत सारे लोग CFA नहीं चुन पाते हैं. that किसी भी करियर को चुनने से पहले you are a discerning thinking individual. तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए to make a better decision about your career. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में जिनको कोडिंग पसंद है, AL, ML, जिनको ब्लॉकचेन फैसिनेट करता है. जी हाँ, someone who is tech savvy, जो टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं मगर फाइनेंस को साथ में जोड़ के. उनके लिए है फिनटेक स्पेशलिस्ट. ड्यू टू द एडवेंचर ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज जॉब रोल्स आर बूमिंग लाइक एनीथिंग. अब ये लोग करते क्या है? फिनटेक स्पेशलिस्ट मतलब आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हो. कंक्रीटली आप फिनटेक स्टार्टअप्स या बैंक
बैंक को एडवाइस देते हो ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन, एआई पावर्ड लर्निंग सिस्टम, रोबो एडवाइजर्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। सो आपका डे कैसा बीतेगा? मे बी आप कोड रिव्यू कर रहे हो पाइथन में, एल्गोरिथम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हो, पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हो। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ब्रिज हो फाइनेंस एंड टेक इंप्लीमेंटेशन के बीच। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनाया? पेटीएम ने पेमेंट्स कैसे डिजिटलाइज किया? और ये सब हुआ फिनटेक स्पेशलिस्ट की वजह से। मतलब कि सिंपली मैं बोलूं तो सीएफए को अंडरस्टिमेट मत करो, या जो सीएफए फिनटेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप लिटरली फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम बना रहे हो कि स्टॉक प्राइस कल ऊपर जाने वाला है या नीचे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गुड क्वांट स्ट्रेटजीज होती है वो मिलियंस बना सकती है। और थोड़ा सा भी अगर इंट्रोवर्ट हो और नंबर्स से प्यार है तो आपके लिए ये एक हेवन से कम नहीं। अब दूसरे जॉब रोल की बात करते हैं जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वन हु लव टू इंटरैक्ट विद पीपल। और अगर आपको नेटवर्किंग एंड क्लाइंट इंटरेक्शन पसंद है तो आप इन्वेस्टर रिलेशंस या फिर वेल्थ मैनेजमेंट में करियर बना सकते हो। एक्चुअली करता क्या है वेल्थ मैनेजर? वेल्थ मैनेजर का काम है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी कि एचएनआईज के वेल्थ को मैनेज करना, या फिर ऐसी कंपनीज का वेल्थ मैनेज करना। किसी के पास 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, दैट कैन ऑल्सो कम्स अंडर वेल्थ मैनेजमेंट। रियल डे कैसा होता है? क्लाइंट मीटिंग्स, उनकी फाइनेंशियल गोल समझना, एवरीथिंग फ्रॉम टैक्स टू रिस्क मैनेजमेंट, सबको ध्यान में रखते हुए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना। कैश इज दीज आर रिलेशनशिप बेस्ड रोल। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो, काउंसलर भी हो, क्लाइंट के साथ डिनर्स भी हो रहा है, पर्सनल रैपो बिल्ड करना है, ये सब मैटर करता है इस रोल के लिए। इंडिया में एचडीएफसी, प्राइवेट बैंकिंग, कोटक वेल्थ, ऐसी कंपनीज में आप आसानी से वेल्थ मैनेजर की जॉब पा सकते हैं। अभी वेल्थ एडवाइजरी की बात करूं या वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूं तो बहुत कम सीएफएस इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में है। अब चलिए बात करते हैं उनकी जिनको डेटा से प्यार है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का काम है स्टॉक्स या बॉन्ड्स को एनालाइज करना और उसके लिए रिपोर्ट लिखना। स्पेसिफिकली मान लो आप आईटी सेक्टर कवर करते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब कंपनीज की एनुअली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स आप एनालाइज करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, मैनेजमेंट कॉल अटेंड करते हो, कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हो, फिर एक डिटेल रिपोर्ट लिखते हो, बाय, होल्ड या सेल, वो भी रिकमेंडेशन के साथ। आपका एनालिसिस डायरेक्टली लैक्स ऑफ इन्वेस्टर को गाइड करता है, डायरेक्ट फ्रॉम यू टू अदर इन्वेस्टर्स। चलिए अब बात करते हैं ऐसे पर्सनालिटी टाइप की जिनको रिस्क बहुत पसंद है। मे बी बचपन से ही घर में ही छोटे छोटे इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारे रिस्क आपने हैंडल किए, कॉलेज में एज अ प्रेसिडेंट या फिर कोई हायर अथॉरिटी में जाके आपने बहुत सारा रिस्क हैंडल किया। उसके बाद भी आप अपना प्रोफाइल सीएफए के बाद रिस्क मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा रोल है। जी हाँ, रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर का काम है कि वो बैंक्स को या एसेट मैनेजर्स को फेलियर से बचाता है। स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई करते हो क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या गलत हो रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग अंडर फाइनेंस। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया है तो आप असेस करते हो ये लोन देना चाहिए या फिर ये लोन की रिकवरी नहीं हो सकती है। व्हाट आर द फैक्टर्स? यू स्टडी एवरीथिंग अबाउट इट। और इस स्टडी के अंदर आप देखते हो कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है क्या, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करते हो, या मार्केट क्रैश हो जाए तो बैंक का पोर्टफोलियो कितना लॉस करेगा। So next one we are going to talk about for the people who are the change makers. I mean, if you are more into sustainability, अगर आपको ESG जैसी चीजें फैसिनेट करती है, CSR के बारे में पढ़ना आपको ज्यादा पसंद है, you are interested in environmental social governance, तो आपके लिए CFA के बाद एक रोल है ESG analyst. ESG analyst के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि CFA में भी ESG इनकलकेट कर दिया गया है। तो CFA करने के बाद आप एक और suitable candidate बन जाते हो ESG analyst रोल के लिए। So basically the role of ESG analyst is to evaluate the companies as per the ESG parameters. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप रिलायंस को एनालाइज कर रहे हो। एनवायरमेंटल फैक्टर से देखोगे उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं या नहीं। सोशल फैक्टर से देखोगे कि वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल रहे हैं, डाइवर्सिटी है क्या कंपनी में। एंड फॉर गवर्नेंस पर्सपेक्टिव यू सी बोर्ड मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट, व्हाट आर द करप्शन रिस्क एंड एवरीथिंग अंडर these 3 parameters. So what these people do that they do research and give you a score as per the ESG. और यहाँ पे कैच ये है कि म्यूचुअल फंड्स इंक्रीजिंगली ये स्कोर देखते हैं बिफोर दे आर इन्वेस्टिंग। मतलब कि आप एज एन ESG एनालिस्ट आपका डिसीजन बहुत इम्पैक्ट करता है मिलियंस एंड बिलियंस के इन्वेस्टमेंट पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मीडिया और कम्युनिकेशन एंड यू वांट टू मेक अ करियर आफ्टर CFA. So in that you can be a finance educator, an independent finance educator, or you can become a teacher in CFA also. And the second option you have investor relations. I mean investor relation specialist. ये क्या होता है?
इन्वेस्टर रिलेशन स्पेशलिस्ट कंपनीज में काम करता है, इन्वेस्टर्स और पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन हैंडल करता है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्लियरली कम्युनिकेट करता है। प्रैक्टिकल डे की बात करें, कैसा होता है एक आईआर स्पेशलिस्ट का डे, तो क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना, एनालिस्ट कॉल्स कंडक्ट करना, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाना, मीडिया इंक्वायरीज हैंडल करना। एग्जाम्पल के तौर में कंपनी ने Q3 में इतना कम प्रॉफिट क्यों किया, and you will be communicating and answering all the questions to the media. Daily basis you will be communicating all the answers of questions like this. Then let's talk about finance consultant. Big Fours, Deloitte, EY, PwC, KPMG में finance consultant companies को advice देते हैं। एवरीडे वर्क में कुछ ऐसा होता है, फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना, क्लाइंट के साइट पे जाना, इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन प्रेजेंट करना सीनियर मैनेजमेंट को, इसके साथ साथ रिपोर्ट्स बनाना, वर्कशॉप कंडक्ट करना, एवरीथिंग कम्स अंडर फाइनेंस कंसल्टेंट। द लास्ट पर्सनालिटी लेट्स टॉक अबाउट फॉर दोज पीपल हु आर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर और थिंक दैट आई हैव गुड कन्विंसिंग स्किल्स, हु आर द डील मेकर्स, एंड दैट इज प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल प्रोफेशनल्स। प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में आप प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, स्टार्टअप्स या फिर एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कंपनीज। रियल प्रोसेस क्या होता है? डील सोर्सिंग, प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स ढूंढना। तो डील सोर्सिंग में बात करें तो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स ढूंढना, मेरा स्टार्टअप नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बनेगा। ड्यू डिलिजेंस, बिजनेस मॉडल वैलिडेट करना, फाइनेंशियल वेरीफाई करना या फिर मार्केट रिसर्च करना। दीज प्रोफेशनल्स आल्सो वर्क इन एग्जिट स्ट्रेटजी, 5 से 7 साल बाद कंपनी को सेल कर देना या फिर आईपीओ रेज करना या फिर आईपीओ कराना और रिटर्न्स जनरेट करना। यू नो मोर देन 33% ऑफ द सीएफए कैंडिडेट्स टारगेट फॉर दिस, और वो भी क्यों ना, क्योंकि डिमांडिंग है एंड ड्यू डिलिजेंस के टाइम में आईबी से बेटर लाइफस्टाइल दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिविटी है, रिस्क असेसमेंट है, जो भी नेगोशिएशन आपके अंदर जो स्किल्स है, लीडरशिप है, सारी चीजें यहाँ पे काम आती है। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट सीएफए के बाद नॉट ओनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देयर आर मल्टीपल रोल्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर सीएफए। जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आवर टीम विल रीच out to you and give you a personalized roadmap for CFA and careers after CFA. This is Aditya Shandev. See you in the next video. So thank you for watching this video. Unique Global Education provides many global courses such as CFA, CMA-US, ACCA, FRM, ESD, CFP and many more. If you have any query regarding any of these courses, so please make sure to get in touch with our team with the help of the contact number provided in the description, or make sure to fill the Google form and our team will get in touch with you. अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली make sure to subscribe the channel right away, because on this channel so we'll be coming up with great content every week. So make sure to subscribe the channel, and अगर वीडियो काम आए तो make sure you share it with your friends right away. All the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye.